Hello, Mimoki guys. So, just to naughty guys. So today we will let's start with the relation. Function we are doing, and then this part is also relation. Okay. This is relation class 1. Okay. It's for 12 portion. तो देखो, so before we start with relation के पहले हमें क्या करना चाहिए? Suppose take A sets. Suppose A has 2 elements. हाँ, इसमें 2 elements हैं. इसे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. ठीक है, ये क्या है? एक नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है. ओके, नॉन एम्प्टी मीन्स इसमें एलिमेंट है. फाइनाइट क्या है? फाइनाइट मीन्स जो इट्स कार्डिनल नंबर दैट इज 2. राइट? फाइनाइट, काउंटेबल. ये सब टर्म you have to remember. Countable. This is called cardinal number. Okay. Of a set. ये ऐसे डिनोट किया जाता है. Suppose B is another set. Suppose B is a well-defined set of well-defined collection of objects. Suppose B. So what will be in B? Cardinal number 1, 2, 3. So 3. This is also non-empty finite sets. Okay? This is your A. This is your B sets. Okay? Now what will I do here? हम क्या करेंगे यहाँ पे? We'll find out the Cartesian products. Cartesian product find करेंगे. What is Cartesian products? Cartesian product of suppose 2 sets. It will be denoted by A cross B. Okay, A cross B, but it is a Cartesian product. A by B. A क्या था? 1, 2. A, B, C. Okay. So what will be the Cartesian product? That is also a set. Okay, it is a finite, non-empty finite sets. Non-empty and finite. इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये. ठीक है, finite Cartesian products का. So 1 comma A, that is one element. Comma 1 comma B, 1 comma C, 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C. These are individual elements. Okay. So how many elements is there? So this is A cross B. 1 इसके साथ, then 1 इसके साथ, then 1 probably XY types elements. Okay, ordered pairs. These are called ordered pairs. Like your XY. पता है ना? वही coordinate geometry में जो किए थे. This is abscissa, this is ordinate. It like this. Ordered pairs. अच्छा बताओ, in A cross B क्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6. देखो 6 को क्या करोगे? 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं, 6 into 1 ही लिख सकते हैं. So in A into in B. Okay, this is your formula. So in A cross B is basically in A into in B. ये मैं लिख दे रहा हूँ, important formula है Cartesian products में. इसी से हमें relation find करेंगे. In A into in B. Okay.
ये मार्क करके रखो ऐसे, दीज आर द माइंड मैप्स। ये भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इन ए क्रॉस इन बी। देखो 6 को तो ऐसे ही लिखोगे ना। और यहाँ पे I will give you one homework that what will be B cross A? Will you say B cross A is A cross B? Okay. One for relation. अच्छे से देखो तुम्हारा B फाइनाइट मतलब ही काउंट कर दो। Now let's see whether B cross A is A cross B or not. तुम जब B cross A करोगे, if you try to find B cross A, ये होमवर्क है। B cross A मैं बता दे रहा हूँ, B cross A will be A B C cross B A. First ये, then this is 1, 2. एक एलिमेंट में लिख दे रहा हूँ, A के साथ 1, then A के साथ 2, A1 A2 comma B1 B2 then C1 C2। ठीक है। अच्छा, इफ यू कैलकुलेट इन B क्रॉस A, देखो वो भी 6 ही है, दैट इज इक्वल्स टू NB इंटू NA। NB और NA मल्टीप्लाई करके भी वही होगा। NB तुम्हारा 3 था आई थिंक, और NA तुम्हारा 2 था। ये ठीक है, दिस विल सेटिस्फाई, बट प्रॉब्लम क्या होगा देखो, अच्छे से देखो, बट लेकिन बट A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्यों? देखो क्योंकि A क्रॉस B में एलिमेंट आया था 1A which is not equals to A1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर्स इट इज 1, इसका फर्स्ट ऑर्डर, जिसका कॉल्ड ये ऑर्डर पेयर्स कहते हैं इसको। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है। तुम क्या बोलोगे x, y इक्वल्स टू y, x, वो तो सिमेट्री में होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि x अलग है, वो फर्स्ट एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, और y तुम्हारा y कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज ऑर्डिनेट होता है, दोनों अलग अलग। यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है, यही याद रखना। मतलब कम्यूटेटिव नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ओके, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट ऑफ टू finite well defined sets are not is not commutative, okay, not commutative, that is मतलब A cross B not equals to B cross A, but लेकिन in cardinal number of A cross B equals to cardinal number of B cross A, that is equals to in A into in B, okay, अच्छे से समझो, ओके, कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि यहाँ पे these are basically theoretical, so now it's more of a theory, इसमें theory ज़्यादा है। Now what will I do here? हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एकदम फर्स्ट चैप्टर रहता है,
Now relation. First, relations are three types. First is reflexive relation. This is mind map. Reflexive. Then symmetric. We'll discuss एक के बाद एक. Symmetric, reflexive, symmetric और तीसरा है transitive. Transitive relation. ठीक है. 1, ये 2 सोचो, ये 3. और इफ ए रिलेशन, अगर कोई रिलेशन ऐसा होता है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है. सो तीनों ही अगर हुआ, इफ ऑल थ्री साइमल्टेनियसली एक साथ ही हुआ, देन इट विल बी कॉल्ड इक्विवैलेंस. इसको इक्विवैलेंस रिलेशन कहते हैं. इक्विवैलेंस रिलेशन कहेंगे. मैं बताता हूँ एक 1 by 1 क्या होता है. मतलब ऑल थ्री, जब when ऑल थ्री 1 2, ये भी हुआ एक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ, देन ऑल थ्री रिलेशन सेटिस्फाई. तो उसको कहेंगे दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. इससे एक क्वेश्चन आता है, विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो. देखते हैं 1 by 1 करते हैं. अच्छा, अच्छे से समझ ना, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ टफ नहीं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सपोज एक सेट है E, उसमें एक एलिमेंट है 1, 2, 3 और सो कार्डिनल नंबर Na is 3. Okay? Now there is a relation set. So what will be A cross A? बता सकते हो? 1 इसके साथ यही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 होगा, उसमें 1 2 होगा, देन 1 3 होगा, राइट. ऐसे चलता रहेगा. देन 2 1, then 2 2, right, and so on. ऐसा. So that means n cross A will be 3 into 3, so 9. Okay. Now there is a relation. इसको हम, so this is called relation set. Okay, a relation set is given. ये जो relation set है, set वो क्या है? वो ऐसा एक एलिमेंट है 1 1 2 2, सपोज 3 3. और यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं. सपोज 3 1 भी है, 2 2 भी है. ओके, ऐसे. सो नाउ अच्छे से देखो, अगर तुम इफ यू कैलकुलेट इन ए क्रॉस ए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें 9 एलिमेंट मिलेंगे. कैलकुलेट करके देखो. ये तो यहाँ पे सोचो 2 3 होगा, देन 3 1, देन 3 2, देन 3 3. तो एक चीज देखो, जो रो, इसको आर भी कह सकते हो, रो या आर. सो रो और आर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, यू कैन से ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए. देखो, ठीक है नहीं? इसमें जो एलिमेंट है, देखो ये एलिमेंट यहाँ पे है, ये एलिमेंट यहाँ पे है, ये एलिमेंट यहाँ पे है, राइट.
ये एलिमेंट तुम्हारा यहाँ पे है और 2 3 यहाँ पे। सो दिस एंटायर सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर तुम ऐसे करोगे कि एक रिलेशन सेट इज ऑलवेज रिलेशन सेट ऑन ए ऑन बी, सपोज एक रिलेशन सेट है ऑन ए क्रॉस बी, इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का ही सबसेट होगा, ठीक है, मे बी इक्वल सेट और मे बी प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये एक कंडीशन है, इसको भी माइंड में, रिजल्ट को माइंड में की तरह लिख दो, लिख के रखो माइंड में। समझा? ये तो इसी का ही सबसेट है ना, ये ए क्रॉस ए है, अगर ए क्रॉस बी करोगे या कोई भी सेट। अब देखो नाउ यहाँ पे देखो, एवरी एलिमेंट, ए का एक एलिमेंट है 1, बाय रिलेशन दिस इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 2। देखो 1 के साथ 1 का रिलेशन है, 2 के साथ 2 का रिलेशन है, 3 के साथ, ये तो रिलेशन ही सेट है ना, and 3 is related with 3। देखो, and every element, हर एक एलिमेंट ए का, it is related with itself। तो this kind of relation is called reflective। इस मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन this is called reflexive relation। okay, is called reflexive। so what will be the definition of reflexive? डेफिनेशन क्या होगा? देखो डेफिनेशन, suppose A has elements, x number of elements, where x and x belongs to A, then for all x, suppose xi belongs to A, there exists a relation R, or it can be denoted, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, such that कैसे ना, xi जो है वो that is related with xi, मतलब जैसे वहां पे 1 के साथ रिलेटेड था, 1 के साथ 2 का रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए, ये फॉर ऑल साइन है, फॉर ऑल, हर एक एक्स के लिए जो भी एक्स ए में होगा वो इस रिलेशन से होगा। मतलब सोचो कि एक ए में x1 है और x2 है, ठीक है। सो एक रिलेशन अगर मिले कि x1 के साथ रिलेटेड है और x2 के साथ रिलेटेड है, then we'll say this relation, whatever the relation is called reflexive relation। अगर सोचो कि कोई रिलेशन ऐसा हुआ कि तुम्हारा सपोज एक रिलेशन, इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन सच दैट, इसमें ऐसा हुआ कि x1 के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये ए सेट में जो एक एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो उसके साथ खुद के साथ रिलेशन नहीं है, देन दैट रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये है बट ये नहीं है, देन इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसी के साथ रिलेशन, देन इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी माइंड में सिमेट्रिक रिलेशन, इसी का सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सपोज एक रिलेशन गिवन है
ऐसे कि A is related with B if ये गिवन है एक एलिमेंट वायर ए बी सपोज, एक मिनट पहले डिफाइन कर लेते हैं. सपोज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट. सो तुम्हें पता ही है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, एनी एलिमेंट. इसमें बहुत सारा एलिमेंट है. सपोज आई इक्वल्स टू एनी 1 2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी आई तुम्हारा क्या है 1 2 डॉट डॉट. तो तुम्हें पता ही है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, दैट विल बी ए आई कॉमा बी आई, राइट. सच दैट ए आई बिलोंग्स टू ए एंड बी आई बिलोंग्स टू, वो बी से लेंगे, ठीक. ये ए क्रॉस बी होगा. नाउ अगर ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट मिला, एक ऐसा एलिमेंट है कि ए के साथ बी रिलेटेड है, इफ ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी. अगर तुम किसी तरह प्रूफ करो, यू कैन प्रूव दैट बी ऑल्सो रिलेटेड विथ ए, ये रिलेशन है कि, ठीक है, बी ऑल्सो रिलेटेड विथ, देन द रिलेशन, okay, ये जो रिलेशन गिवन था, ये रिलेशन विल बी, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे. सिमेट्रिक रिलेशन एग्जांपल से समझ आएगा, ठीक है. एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल देता हूँ, सबसे आसान होगा, ठीक है. यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए बी के साथ रिलेटेड ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें चेक करना है कि बी ए के साथ रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन. देखो अच्छे से तो समझ आ जाएगा, बहुत आसान. सपोज जियोमेट्रिकल एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 1, बहुत आसानी से समझ जाओगे. सपोज ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सपोज पी क्यू आर, ठीक है. अगर एबीसी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हुआ, दिस इज कॉन्ग्रुएंट. हम बचपन में करते थे ना, बाई सीपीसीटी ये सब प्रूफ करते थे. सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या सब निकालते थे. एस 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 मेथड से प्रूफ करते थे, एस ए एस मेथड से, ए ए एस मेथड से, ये तीनों मेथड से करते थे. दोज थिंग्स बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो that will imply कि ट्रायंगल PQR, ये लिखना क्या अलग है या गलत है? इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी. सेम ही तो होगा. ये अगर इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये भी तो रिवर्स करके तुम ऐसे लिख सकते हो. तो दिस कॉन्ग्रुएंसी इज बेसिकली ए सिमेट्रिक रिलेशन. क्यों? इसका तीनों साइड अगर इसके साथ है तो रिवर्स करके भी तो लिख सकते हो, सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है जियोमेट्रिकल, एक देखो कि सोचो कि ट्रायंगल एबीसी एक है, उसमें ये है ट्रायंगल PQR, ये क्या है, सिमिलर, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, मतलब एंगल इक्वल है. सोचो कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल, इसमें ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. सपोज दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है. दोनों का साइज डिफरेंट है लेकिन एंगल सेम है. तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है. तो ये अगर इसके साथ सिमिलर होगा, सो दैट मीन्स सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन. देखो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि PQR इज सिमिलर टू, सिमिलर साइन ये, और ये कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ABC, है कि नहीं. तीनों एंगल इक्वल होता है तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल. साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये सिमिलर हो सकता है, ठीक है.
बहुत सारा ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल तुम कर सकते हो। और देखो एग्जाम्पल 3 एक हो सकता है कि एक लाइन है L1 L2, ये दोनों पैरेलल है, तो L1 पैरेलल टू L2। अब देखो इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो, तो इसको तो ऐसे भी, ये अगर ये पैरेलल साइन, अगर L1 रिलेटेड विद L2 बाय पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, देन L2 तुम लिख सकते हो कि ये L1 के साथ ही है, तो ये भी तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन हो, ये भी सिमेट्रिक। सोचो कि सपोज x इज 4 एंड y इज सपोज 6। हाँ, नाउ रिलेशन क्या गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है x माइनस वाई, इसको 8 कर देते हैं सपोज। इस रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब इट इज डिविजिबल बाय सपोज 2। ठीक है, तब देखो 8 माइनस 6 कितना होता है 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब नाउ देखो y माइनस एक्स क्या होगा, तो दैट मीन्स इससे हम कह सकते हैं हाँ x और y अगर 8 एंड 6 हुआ तो ओके, x इज रिलेटेड विद y, क्योंकि x माइनस वाई तुम्हारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। ओके, y माइनस एक्स, तो दैट इज 6 माइनस 8, दैट इज माइनस 2, ये भी तो 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है -1 आएगा, इट विद 1। आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन डिविजिबल तो है, so that means this implies y is related with x रिवर्स, तो ये भी तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करना होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज सिमेट्रिक रिलेशन में याद रखना हमेशा, क्या के सपोज मैं बता रहा हूँ, सपोज एक ऐसा है कि ये है कि जो सेट है, हाँ, उसमें बहुत सारा एलिमेंट है, सपोज 1 2 3, इनमें से 1 2 के साथ सपोज रिलेटेड है एंड 2 रिलेटेड विद 1, ठीक है, लेकिन बट क्या हुआ तुम्हारा, सपोज 1 रिलेटेड विद 3 बट 3 डज नॉट रिलेटेड विद 1 हो गया, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सो दैट मीन्स 1 और 3 तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कर रहा है बस एक होने से ही मतलब है। जैसे रिफ्लेक्सिव में ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज टू सेटिस्फाई दैट इट्स रिलेटेड विद इटसेल्फ, यहाँ पे वैसा कोई नहीं है, एक होने से ही हो जाएगा, कोई भी एक, ठीक है। दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एग्जांपल, और हम तो करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you all. फकी बात, एग्जाम कैसे हुआ सबका, ओके। नेक्स्ट क्लास में विल डू डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है।